Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Jaya Dvaita Chandra Jaya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna. Radha Gopal Krishna, Radha Gopal Krishna, Radha Gopal Krishna, Radhe Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Subhadramaya Jaya Sudarshana Jaya Jagannatha Baladeva Subhadramaya Jaya Sudarshana Jaya Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Jaya Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Jaya Panchakata Jaya Panchakata Jaya Gura Jaya Panchakata Jaya Panchakata Jaya Gura Jaya Shri Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya 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 Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Shri Radha Gopal Krishna Bhagavan की जय, जगन्नाथ बदेश्वर रानी की जय, श्री गोविंदाय की जय, राजराज चिरतानंद की जय, कृष्णदास राज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, थाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Om Jnanatindrandasya Jnananjanasalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamahyam Dadadi Swapadadhigam Vandeyaham Shri Gurun Shri Tatakamanam Shri Gurun Vaishnavansha
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Sridhar Charitamrita, Adi Leela, Chapter 1, Text 57. चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिकिपिञ्च मौली यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवररसं लभते जयश्री चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिकिपिञ्च मौली यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवररसं लभते जयश्री चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिकिपिञ्च मौली यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवररसं लभते जयश्री। Word to word meaning. Chintamani Jayati, all glory to Chintamani. Somagiri, the initiating Guru. Guru, spiritual master. Me, my. Shiksha Guru, instructing spiritual master. Cha, and Bhagavan, the supreme personality of Godhead. Shikipincha, with peacock feathers. Mauli, whose head. Yet, whose pada, of the lotus feet. Kalpataru, like desired trees. Pallava, like new leaves. Shekareshu, at the toenails. Leela Swayamvara, of conjugal pastimes. Rasam, the mellow. Labade, obtains. Jayasri, Srimati Radharani. Translation purport by Sri Prabhupada Ki Jai. Translation. All glories to Chintamani and my initiating spiritual master Somagiri. All glories to my instructing spiritual master, the Supreme Personality of Godhead, who wears peacock feathers in his crown.
Under the shade of his lotus feet, which are like desire trees, Jayasri Radharani enjoys the transcendental mellow of an eternal consort. Purport by Sri Prabhupada ki jai. This verse is from the Krishna Karnamrita, which was written by a great Vaishnava sannyasi named Billamangala Thakura, who is also known as Leela Shuka. He intensely desired to enter into the eternal pastimes of the Lord, and he lived at Vrindavana for 700 years in the vicinity of Brahmakunda, a still existing bathing tank in Vrindavana. The history of Billamangala Thakura is given in a book called Sri Vallabha Digvijaya. He appeared in the 8th century of the Shaka era in the province of Dravida and was the chief disciple of Vishnu Swami. In a list of temples and monasteries kept in Shankaracharya's monastery in Dwaraka, Billamangala is mentioned as the founder of the Dwarakadisha temple there. He entrusted the service of his deity to Hari Brahmachari, a disciple of Vallabha. Billamangala Thakura actually entered into transcendental pastimes of Lord Krishna. He has recorded his transcendental experiences and appreciation in the book known as Krishna Karnamrita. In the beginning of that book, he has offered his obeisances to his different gurus, and it is to be noted that he has adorned them all equally. Shri Radha Gopal Krishna Bhagavan ki jai, Jananda Deshmukh Ramanani ki jai, Shri Govindhaya ki jai, Shri Prabhupada ki jai. The first spiritual master mentioned in is Chintamani, who was one of his instructing spiritual masters, because Shri first showed him the spiritual path. Chintamani was a prostitute with whom Billamangala was intimate earlier in his life. She gave him the inspiration to begin on the path of devotional service, and because she convinced him to give up material existence to try for perfection by loving Krishna, he has first offered his respects to her. Next, he offers his respects to his initiating spiritual master Somagiri, and then to Supreme Personality of Godhead, who was also his instructing spiritual master. He explicitly mentions Bhagavan, who has peacock feathers on his crown, because the Lord of Vrindavana, Krishna, the cowherd boy, used to come to Billamangala to talk with him and supply him with milk. In his adoration of Sri Krishna, the personality of Godhead, he states that Jayasri, the goddess of fortune, Srimati Radharani, takes shelter in the shade of his lotus feet to enjoy the transcendental rasa of nuptial love. The complete treatise Krishna Karnamrita is dedicated to the transcendental pastimes of Sri Krishna and Srimati Radharani. It is a book to be read and understood by the most elevated devotees of Sri Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, you understand Hindi? No, this Prabhu. You understand Hindi? अच्छा, okay, Hare Krishna. तो आज हम पिछले क्लास में क्या क्या इसमें आया था, टॉपिक क्या था, याद है? Okay, चलो श्लोकी भागवतम. Okay, then. Okay. So we were going through. हम लोग ये गुरु की महिमा के बारे में पढ़ रहा था पिछले क्लास में. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पिछले क्लास में, पिछले श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बता रहे कि चैत्य गुरु जो भगवान है वो हमको कैसे गाइड करते हैं. जो अंदर बैठा है पर फिर भी वो चैत्य गुरु बन के हमको डायरेक्शन देते हैं आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक जीवन में. तो वो सब्सटैंशिएट करने के लिए कि भगवान चैत्य गुरु बन के हमको गाइड कर रहे हैं, ये बात सब्सटैंशिएट करने के लिए पूरा चतुश्लोकी भागवतम बताया और
अभी ये श्लोका कृष्ण का नामदा से जो बिल्लमंगल ठाकुर ने जो एक ग्रंथ लिखा है उसमें से अडाप्ट करके ये श्लोका भी कोट कर रहा है कविराज गोस्वामी। तो यहाँ क्या बता रहा है बिल्लमंगल ठाकुर? बिल्लमंगल ठाकुर अपने कृष्ण का नाम में अपने कृष्ण का नाम में शुरुआत में ही अपने गुरुवर को नहीं तो अपने गुरुजन को प्रणाम कर रहे हैं। कौन? बिल्लमंगल ठाकुर। अभी पहले बता रहे कि चिंतामणिर जयति सोमगिरिर गुरुर में मीन्स मेरा गुरु मतलब पद प्रदर्शक गुरु हो, जो भी शिक्षा गुरु हो, वो शिक्षा गुरु कौन है? चिंतामणि है। चिंतामणि तो पहले एक वेश्यास्त्री थे, पर उन्होंने अपने जीवन में वो चिंतामणि से बहुत आकर्षण था बिल्लमंगल ठाकुर को, तो कभी कभी उनके पास जाता था। तो एक दिन बहुत बारिश था, उस बारिश में भी कैसे भी वो पकड़ के चिंतामणि के घर पहुंचे। तो चिंतामणि सोचा कि मैं सोचा कि आज आप नहीं आएगा इतने घने बारिश में, पर आप फिर भी आया। तो चिंतामणि ने उसके बाद एक डायलॉग बोला कि आप इतना तकलीफ उठा रहे हो मेरे पास आने के लिए, इतना तकलीफ आप भगवान की सेवा में लगेंगे तो आप कब भक्त बना होगा। तो ये जो डायलॉग चिंतामणि ने तो ऐसे ही बोला था, पर बिल्लमंगल ठाकुर को तो वो बहुत स्ट्राइक हो गया। सही है, मैं क्या करके आया था मैं तो कल अगला दिन सुबह देख रहे हैं कि वो एक रस्सी पकड़ के वो जो रस्सी पकड़ के खींच के ऊपर आया था, तो वो एक मरा हुआ सांप था और वो नदी पार करने के लिए एक लकड़ी का पीस यूज़ किया था। तो वो एक एक्चुअली एक डेड बॉडी था, वो उसमें पकड़ के वो आया था। तो इतना तकलीफ उठा के वो आया, तो उसको पता चला कि मैं कितना काम विवश था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं जो अभी कर रहा है वो सही नहीं है, सोच के वो अपने द्वारका धाम जा रहे हैं और वहाँ से सोमगिरी उनके गुरु जो दीक्षा गुरु है उनसे दीक्षा ले रहे और उनको लीलाशु का नाम भी दे रहे सोमगिरी। और वहाँ से वो द्वारकाधीश का मंदिर स्थापना कर रहे हैं, मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। और उसके बाद वृंदावन में आके वो ब्रह्मकुंड के पास, अभी भी है वृंदावन में ब्रह्मकुंड के पास, बैठ के वो अपना भजन करते हैं। और इनका एक स्पेशलिटी क्या है कि ये 700 साल जीवित था। मतलब हमारा तो आयु तो कितना 100 साल है बोला है, पर फिर भी 60-70 आउट तो इन्होंने 700 साल उधर ही वृंदावन धाम में जीवित था। पर वो समय में उनको कैसा था कि वो अपना भक्ति में इतना मग्न था, वो भजन में इतना मग्न था, वो भजन करके करके खुद भगवान स्वयं आया करता था उनके पास। और वो कभी कभी है ना कैसे भजन करता है कि वो अपना खाना पीना भी भूल जाता है, ऐसे भजन में मग्न होता है। तो कभी कभी खाना भगवान तो छोटे बच्चे बन के उनके पास आके थोड़ा दूध देता है, अरे बाबा जी आप ये पी लो करके भगवान देते थे। तो बिल्लमंगल ठाकुर वो पीते थे, पर वो पीने के बाद उनको लगता है कि ये तो ऐसे यहाँ जो मिल रहा है ऐसे नॉर्मल दूध नहीं है, ये कुछ स्पेशल दूध है। तो ये बच्चे से हर टाइम पूछता था कि ये तुम कहाँ से ला रहे हो ये दूध? मैं मेरे घर से ला रहा हूँ, मेरी माँ ने ये दिया था आपको देने के लिए बोल के, तो मैं आके दे रहे। अच्छा, तो एक दिन बिल्लमंगल ठाकुर को पता चला कि ये स्वयं भगवान आ रहे हैं, तो उनको इतना आंखों से आंसू आ रहा था और भगवान के चरणों में पड़ा था। पर भगवान बोला कि नहीं, तुम आप तो मेरे लिए मेरा भजन कर रहे हो ना, इधर इतना ये धूप में बैठ के इधर कर रहे थे, तो मैं सोचा कि आपको थोड़ा मैं आपका सेवा करूं। वही तो भगवान की भाव है। भगवान तो कभी भी नहीं कहता है कि भक्त का सामने कि हाँ मैं भगवान हूँ आप मेरे दास हो, ऐसे नहीं कहते भगवान। भगवान क्या कहते हैं? मैं आपका दास हूँ। यही तो भगवान की भाव है। तो बिल्लमंगल ठाकुर जिस दिन से पता चला कि वो कृष्ण है, तो जब भी उसके बाद कृष्ण आता था वो दोनों बैठ के
बातें करते थे। और कैसे बातें करते थे कि भगवान का जो लीला है उसके बारे में विल्वमंगल ठाकुर कृष्ण से बातें करते थे। तो कृष्ण अपना व्यू पॉइंट्स बताता है कि विल्वमंगल ठाकुर को। तो वो सुन के कृष्ण का बात सुन के उन्होंने लास्ट में एक कृष्ण कर्मामृता करके एक ग्रंथ लिख रहा है। जैसे महाप्रभु अपने अंधी लीला में गंभीरा में बैठ के जो 3 कवियों के कीर्तन मतलब जो रचनाएं सुनते थे उसमें से एक है विल्वमंगल ठाकुर, दूसरा था जयदेव गोस्वामी और तीसरा चंडीदास। ये जयदेव गोस्वामी का गीता गोविंदा और चंडीदास ने भी लिखा था कुछ, मैं याद नहीं करता है। उनका भी एक भगवान के द्वारा विरचित एक कीर्तन है, वो भी चैतन्य महाप्रभु बैठ के सुनते थे गंभीरा में, क्योंकि महाप्रभु को तो बहुत पसंद है ये तीनों कवियों का रचनाएं। और इसमें विल्वमंगल ठाकुर का कारनामा तो हमेशा स्वरूप दामोदर गोस्वामी पढ़ के देते हैं महाप्रभु को, और महाप्रभु बहुत आनंद से सुनते हैं। कभी कभी वो बेहोश हो जाता है और कभी कभी ऐसे भाव में आके राधे राधे बुलाते थे महाप्रभु। कभी कभी राधा रानी को मिस करते थे महाप्रभु और कभी कभी कृष्ण को मिस करते थे महाप्रभु। तो ये दोनों भाव महाप्रभु वहाँ गंभीरा में बैठ के दिखा रहा था, वही भाव। तो कृष्णदास ये विल्वमंगल ठाकुर तो हमने अपना भक्ति सिद्धांत ठाकुर विल्वमंगल ठाकुर के बारे में ये बता रहे कि वो एक परम वैष्णव सन्यासी था। तो जो सिद्धांत ठाकुर ने अपना अनुभाष्य में जो लिखा है वही श्रील प्रभुपाद ने इधर तात्पर्य में लिखा है, वही ट्रांसलेट करके लिखा है प्रभुपाद ने भी। और सिद्धांत ठाकुर और विल्वमंगल ठाकुर के बारे में ये बता रहे कि उन्होंने जैसे उनका एक शिष्य था हरिवल्लभ करके, उनको जो द्वारकाधीश का मूर्ति सब स्थापना करने के बाद हरिवल्लभ को ये अपना ड्यूटी संभालने के लिए बोल के वो चले जाता है। और जैसे विल्वमंगल ठाकुर का जो परंपरा है तो वो हरिवल्लभ से शुरू हो रहा है। और ये जो उनका जो हमारा जो यहाँ लिखा है जैसे गुरु परंपरा, वैसे शंकराचार्य का मठ में, मतलब वो जो शंकराचार्य का मठ में ही वहाँ का द्वारकाधीश का ये सब देख रहा था, तो वहाँ उनका नाम ये गुरु परंपरा में लिखा हुआ है विल्वमंगल ठाकुर का। उनका भी गुरु परंपरा आ रहा है भगवान से। पर सिद्धांत ठाकुर ये बता रहे कि यहाँ विल्वमंगल ठाकुर का केस में तो बहुत स्पेशलिटी है, वो तो कैसे भी वो गुरु परंपरा में आ रहे हैं। पर विल्वमंगल ठाकुर से, क्योंकि शंकराचार्य का परंपरा तो मायावाद सिद्धांत को फॉलो करते थे, पर विल्वमंगल ठाकुर को क्योंकि भगवान ने आके स्वयं उनको मार्गदर्शन किया था, वो बहुत बड़े भक्त बन गए। वैसे ही उनका गुरु जो सोमगिरी है, उनका दूसरा नाम है विष्णु स्वामी। तो ये विष्णु स्वामी एक्चुअली रुद्र संप्रदाय का है। हमारा जो 4 ऑथेंटिक वैष्णव संप्रदाय है उसमें से एक है रुद्र संप्रदाय। वो महादेव से ही दीक्षा मिला था विष्णु स्वामी को, और विष्णु स्वामी विल्वमंगल ठाकुर को दीक्षा लिया, ऐसे भी कहते हैं। पर कुछ लोग ये तो ये बात तो थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि कुछ लोग ये नहीं मान रहे कि वो विष्णु स्वामी का शिष्य था। वो कुछ लोग बोला था कि राज विष्णु है वो दूसरा है और विष्णु स्वामी दूसरा है करके, तो इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। फिर भी तो यहाँ हमको देखने को ये मिल रहा है कि हमारी जो सिद्धांत ठाकुर ये बता रहे कि भगवान चैत्य गुरु बन के अपना हमारा अंदर बैठा है, पर वो हमको देखने को नहीं मिलता है। तो भगवान कैसे हमको वो महसूस देते हैं कि भगवान जो अंदर बैठ के हमारा जो भाव समझते हैं, वो कभी कभी हमारा सामने एक महानदा गुरु बन के, मतलब महानदा गुरु मतलब एक महात्मा, मतलब एक जो शुद्ध भक्त का रूप में भगवान हमारे सामने आता है। अभी हम उनसे वो ऐसे एक भक्त से हम दीक्षा भी लेते हैं, तो वो दीक्षा गुरु बन के हमारे जो सामने आ रहे हैं, हमको ऐसे रिस्पेक्ट देना है कि वो स्वयं भगवान है करके, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अगर
आपके पास सामने एक भक्त, शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त बैठा है, तो मतलब ये सोचना है कि ये वो हम भगवान का प्रतिनिधि है, वो भगवान स्वयं गुरु का रूप में हमारा सामने आ रहा है, क्योंकि हमको मार्गदर्शन देने के लिए। तो इसमें से ये काव्यराज गोस्वामी बताना चाहते हैं कि जो भी गुरु है, मतलब पद प्रदर्शक हो, चैत्य गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, वो सब भगवान का ही विस्तरण है। तो हमको इसमें से मेन पॉइंट ये है कि ये शुरुआत हुआ था सर्वदेव मयो गुरु, जो भागवत से कविराज गोस्वामी कोट किया था। तो गुरु एक्चुअली सारे देवी देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव है, स्वयं भगवान का भी रिप्रेजेंटेटिव है। उसका इलाबोरेट एक्सप्लेनेशन था अभी ये जो सारे श्लोक। तो गुरु को जैसे जितना भगवान को हम मर्यादा देते हैं, इतना रिस्पेक्ट हम भगवान को देते हैं, जैसे जितना आराध्य है भगवान, ऐसे इतना हम गुरु को भी आराधना करना है और पूजा करना है। और यहाँ भगवान के और लीला राधा रानी का बारे में बता रहे हैं कि यहाँ जो कृष्ण के बारे में बिल्वानंद ठाकुर ये बता रहे हैं कि कृष्ण मेरा शिक्षा गुरु है, क्योंकि वो कभी कभी मेरे पास आता था। और वो जो कृष्ण है उनके मौली में जो मोर का पंख है और उनके जो चरण कमल है, वो चरण कमल का आश्रय लेके राधा रानी उनका साथ बहुत सारे लीला करके आनंद पाते हैं। तो यहाँ राधा रानी का नाम आप देखो कि बिल्वानंद ठाकुर बता रहे हैं जयश्री। जयश्री तो राधा रानी का एक दूसरा नाम है। बेसिकली ये श्री मतलब लक्ष्मी देवी को संबोधना करते हैं श्री नाम से। तो जयश्री मतलब राधा रानी है, ठीक है। वैसे बेसिकली तो राधा रानी का ही एक्सपेंशन है लक्ष्मी देवी भी, पर यहाँ राधा रानी को क्यों जयश्री करके संबोधना की, तो वो सिद्धांत ठाकुर ये बता रहे कि जयश्री का मतलब है कंट्रोलर ऑफ लक्ष्मी देवीज, कंट्रोलर ऑफ मिलियंस ऑफ लक्ष्मी देवीज। यानी कि जो वैकुंठ लोक में अनेक लक्ष्मी देवी हैं भगवान को सेवा करके, जो सारे लक्ष्मी देवियों को एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर रहे हैं, कौन? राधा रानी। क्योंकि वो राधा रानी का ही एक्सपेंशन है, इसलिए राधा रानी स्वयं सारे लक्ष्मी देवियों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये भी इसमें से हमको समझने को पा रहे हैं, ठीक है। अगला श्लोक टेक्स्ट 58। जीवे साक्षात् नहि ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। जीवे साक्षात् नहि ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। जीवे साक्षात् नहि ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। Jive, by the living entity, Sakshat, direct experience, Nahi, there is not, Tate, therefore, Guru, the spiritual master, Chaitya Rupe, in the form of the super soul, Shiksha Guru, the spiritual master who instructs, Hai, appears, Krishna, the supreme personality of Godhead, Mahanda, the topmost devotee, Swarupe, in the form of translation purport by Srila Prabhupada. Since one cannot visually experience the presence of the supreme super soul, he appears before us as a liberated devotee. Such a spiritual master is none other than Krishna himself. Purport. It is not possible for a conditioned soul to directly meet Krishna, the supreme personality of Godhead, but if one becomes a sincere devotee and seriously engages in devotional service, Lord Krishna sends an instructing spiritual master to show him favor and invoke his
dormant propensity for serving the Supreme. The preceptor appears before the external senses of the fortunate conditioned soul, and at the same time the devotee is guided from within by the Chaitya Guru Krishna, who is seated as the spiritual master within the heart of the living entity. Hare Krishna. यहाँ कविराज गोस्वामी बता रहे कि वैसे ही अपने चैत्य गुरु को हर कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। देख सकता है कुछ लोग, उनको तो कुछ दिव्य शक्ति भी होता है और वो अपना यौगिक सिद्धि से भी देख सकता है, मतलब चैत्य गुरु मतलब अपने परमात्मा को, ठीक है। ऐसे भगवान कहते हैं कि सब लोग को भी देख सकते हैं। कैसे? हमको विनय होना चाहिए, हमको ह्यूमिलिटी होना चाहिए, हमको विनम्रता होना चाहिए। क्यों? भगवान क्या बता रहे हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी शुनि शैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। कि आप ज्ञान ले लो, जो भी ले लो, पर आपको विनय होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं? सारे जीवों में हमको परमात्मा को, भगवान का जो अंश है उसको हम देख सकते हैं। तो इसीलिए सारे जीव को आप एक ही जैसा देख सकते हैं, एक समदर्शी, मतलब सब जीवों को एक ही लेवल पे हम देख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि अंबानी वो बहुत बड़े पैसे वाला है और वो है इधर और मेरे पास कुछ पैसा नहीं, मैं नीचे, ऐसे नहीं है। सबको एक ही लेवल में, यानी कि मतलब मानव हो या जो जंतु हो, जो भी जीवी हो, उनको सब एक ही लेवल पे हम देखेगा। क्यों? वो सब भगवान के अंश सारे जीवों की शरीर में बैठा है। तो ये हम सबको कर सकते हैं, पर फिर भी हमको है ना फिजिकली देख नहीं पाता है। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान वो चैत्य गुरु किसी और रूप धारण करके हमारा सामने आता है। वो है, जैसे मैंने बताया, महानता गुरु। जैसे एक महानता मतलब टॉप मोस्ट डिवोटी, अपने बड़े शुद्ध भक्त, एक शुद्ध भक्त का रूप में भगवान आता है हमको, और हमको आके आदेश देते हैं और शिक्षा देते हैं हमको। तो हमको भगवान चैत्य गुरु बन के अंदर से भी हमको आदेश दे रहे, नहीं तो हमको प्रेरणा देते, और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु बन के हमारा सामने आके भी हमको शिक्षा देते। तो ये बात पे चैतन्य महाप्रभु बता रहा था कि अगर आप लोग को भगवान के सेवा के बिना कोई और चिंता है, ये तो किसी और कर्म करने का वांछा है आपका मन में, तो आप अपने आप को स्वयं वंचित कर रहे हैं। मतलब आत्मवंचना कहते हैं महाप्रभु, मतलब आप अपने आप को ही आप चीटिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान इतना अनुकंपा हमसे कर रहे हैं, वो चैत्य गुरु बन के हमारा अंदर से भी हमको आदेश दे रहे हैं, और अगर हम सिंसियर है और हमको भगवान के ओर जाने का हमारा एक क्या बोलते हैं, एक वांछा होता है, तो भगवान क्या करता है? एक शुद्ध भक्त का रूप में भी हमारा सामने आके हमको आदेश दे रहे हैं। तो एक शुद्ध भक्त का संग मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम हरे कृष्ण, ओके, तो हरे कृष्ण कि अगर देखेगा तो ये जो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, ये जो जगाई माताई, ठीक है, उन्होंने जितना पाप किया था वो इतना स्पीड में पाप कर रहा था, तो ताकि ये जो चित्रगुप्त है ना, वहाँ लिख के उनको लिखने को भी वो टाइम नहीं मिलता है, इतना स्पीड में वो पाप करते थे। पर ये जगाई माताई को इतना पाप ही था, फिर भी भगवान का कोई मतलब कोई भगवान का नहीं, भगवान का भक्त का कोई संग नहीं मिला था। अगर वो कोई भक्त अपने सामने आया था, वो उनको भी तकलीफ देता था, ठीक है, इसलिए कोई उनके पास आता भी नहीं था।
तो जैसे जगाई मदाई हो, हम भी ऐसा ही हैं। हम तो हमारे इंद्रिय विषयों में इतना मग्न हो कि हम क्या बोलते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, पुनः पुनः सर्विद सर्वनारायण। ऐसे ही कि हम जो चबाया है उसको फिर से चबा रहे हैं, कि हम ये सोच के कि उसमें से कुछ रस मिलेगा करके। पर जैसे ये जो गन्ना है ना, शुगर केन, उसको कैसे उनका गन्ने का रस निकलता है, एक मशीन का अंदर से डाल के उसको दबा के जूस डालता है, और एक बार डालने के बाद फिर भी फोल्ड करके एक और बार डालता है, तो फिर से थोड़ा रस आएगा। और अभी दो बार करने के बाद जो बाकी है, वो जो वेस्ट है, उसको फिर से चबा के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम यहाँ ये इस भौतिक जगत में हम सोच रहे कि हाँ, हम जो इंद्रिय विषयों के और भी मतलब इंद्रिय विषयों के और हम बहुत जाता है, और हम सोचते हैं कि हाँ उसमें से कुछ सुख मिलेगा हमको, पर उसमें से कुछ आनंद नहीं मिलेगा। वैसे ही उसको कंपेयर कर रहे हैं ये जो गन्ने का रस, तो जैसे कि हम चबाते चबाते रहते हैं पर सोचते हैं कि रस मिलेगा, पर कुछ रस नहीं मिलेगा। तो जैसे जगाई मताई है, वैसे ही हम भी इस भौतिक जगत में यहाँ ऐसे ही मग्न हुआ है हमारे इंद्रियों को प्रीति करने के लिए। तो एक बार जगाई मदाई ने क्या किया, एक वैष्णव अपराध किया, ठीक है, किसको? नित्यानंद प्रभु को मारा। तभी उनको भगवान का आशीर्वाद मिला। अभी देखो, ऐसे ही एक भक्त का संग प्राप्त हुआ, तभी उनको क्या मिला? मतलब भक्ति मिल गया। जैसे कि ये बता रहे कि अगर किसी भी तरीके से एक भक्त का संग अब हमको प्राप्त हो गया हमारा जीवन में, तो उसका इफेक्ट इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप कैसे भी भक्ति में आएगा। वही है एक भक्त का पावर। तो ये स्वयं भगवान ही बता रहे कि अगर किसी भक्त को हमने कई तरीके से हम अगर सेवा किया, ठीक है, तो अगर आपको इस जन्म में नहीं है तो उनको अगला जन्म में उसका आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो वो जो भक्ति मतलब भक्त का सेवा करने से उनको शायद उनका कर्म का हिसाब देखेगा तो उनको नरकलोक में जाके बहुत साल जीना होगा। पर अगर किसी भक्त का सेवा किया है, उसको अगला जन्म भी एक मानव का मतलब एक मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकता है, ताकि उनको वहाँ से मतलब फिर पिछले जन्म में एक भक्त को सेवा किया तो दूसरा जन्म में आपको 2 या 3 भक्तों को सेवा करने के लिए इतना पावर है। तो ये क्योंकि ये तो भगवान का करुणा है कि भगवान ऐसे ही हमको उद्धार करना चाहता है, पर हम क्या करते हैं, हम वो सब बिना देख के हम इधर ही भौतिक जगत में ही आस्वादन करके बैठ रहे हैं। तो ये हमको कविराज गोस्वामी ये बता रहे कि भगवान कितना करुणा हमसे करता है, और भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको भगवान को हम सबको भगवान के पास लेके जाना है। और हम क्या करते हैं, हम तो ऐसे ही भगवान को भूल जाके हम भगवान की ओर देखता भी नहीं है, भक्तों को और भी नहीं देखता है। तो अगर कोई भक्त अपना हमारा जीवन में हमारा ज़िंदगी में एक बार आया है और उनका मुंह से कुछ सुनने को मिलता है, तो मतलब आपका कोटि जन्म का सुकृति है। ये सोचो क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सुकृति किया है, इसलिए हमको ये एक भक्त का संग मिलने को मिलता है, ठीक है। ये तो हम आगे जाके मध्य लीला में महाप्रभु इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कैसे एक भक्त का संग से क्या क्या हमको मिलता है करके। तो हम आगे देखेंगे। हरे कृष्णा। ऑलरेडी तो लेट हो गया, तो हम आज यहाँ सुन देते हैं। ओके, हरे कृष्णा। देवेंद्राश चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।